بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفرمیٹو ٹی وی کی طرف سے میرے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ جنگ جمل امام علی علیہ السلام کے دور خلافت کی پہلی جنگ ہے جو حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر کی سرکردگی میں مسلمانوں کے ایک گروہ نے حضرت علی علیہ السلام کے خلاف لڑی۔ یہ جنگ سنہ 36 ہجری میں بصرہ کے قریب واقع ہوئی۔ حضرت عائشہ اور ان کے ساتھیوں نے یہ جنگ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کی غرض سے شروع کی۔ حضرت عائشہ اس جنگ میں خود شریک ہوئے اور ایک سرخ اونٹ پر سوار تھیں، اور اس جنگ کا جمل نام رکھنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ عربی میں نر اونٹ کو جمل کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ جسے مسلمانوں کی پہلی داخلی جنگ شمار کیا جاتا تھا، امام علی کی فتح اور طلحہ و زبیر کی ہلاکت پر اختتام پذیر ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت عائشہ گرفتار ہوئے اور جنگ کے آخر میں امام علی نے انہیں ان کے بھائی محمد بن ابی بکر کے ذریعے مدینہ پہنچایا۔ جنگ جمل کے حوالے سے امام علی علیہ السلام کے ارشادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس جنگ کے علل و اسباب کو دو علتوں میں خلاصہ کر سکتے ہیں۔ پہلی دلیل طلحہ اور زبیر کی قدرت طلبی۔ حضرت علی نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 148 میں یوں فرماتے ہیں: طلحہ و زبیر اپنے لیے خلافت کے امیدوار ہیں، خلافت کی کرسی پر یوں نظریں جمائے ہوئے ہیں کہ اپنے ساتھی کو انسان ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں بعض لوگوں کے دل میں بغض اور کینہ تھا، اس سے پہلے خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام اس بارے میں کئی بار اشارہ کرتے آئے ہیں۔ بطور نمونہ یہ جملہ پیش خدمت ہے: چونکہ پیغمبر نے مجھے عائشہ کے والد ابو بکر پر برتری دی تھی، چونکہ پیغمبر نے مجھے میثاق خوت میں اپنا بھائی بنایا تھا، چونکہ خداوند عالم نے حکم صادر فرمایا تھا کہ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے حتی عائشہ کے والد کے گہر کا دروازہ بند کر دیے جائیں، چونکہ جنگ خیبر میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کی ناکامی کے بعد پرچم میرے حوالے کیا اور میں نے قلعہ خیبر کو فتح کیا تھا۔ یہ امر ان کی ناراضگی کا باعث بنا تھا۔ اس کے علاوہ طلحہ اور زبیر اس خام خیالی میں تھے کہ حضرت علی خلافت کے امور میں ان دونوں سے مشورے طلب کریں گے، کیونکہ یہ دونوں خود کو امام علی علیہ السلام کے ہم رتبہ اور ہم مقام جانتے تھے۔ یہ دونوں امیدوار تھے کہ عثمان کی رحلت کے بعد حکومت میں ان کو بھی حصہ ملے گا، لیکن مذکورہ امور میں سے کوئی ایک بھی متحقق نہیں ہوا۔ یہ باعث بنا کہ ان دونوں کی امیر المومنین علیہ السلام کی نسبت دلی خصومت اور ناراضگی آشکار ہوئی، اور باقاعدہ امام علیہ السلام کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور جنگ کرنے پر اتر آئے۔ طلحہ نے بصرہ کے لوگوں کے سامنے جو خطبہ دیا، اس میں امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کی علت کو امت پیغمبر کی اصلاح اور اطاعت خدا کی ترویج بیان کی۔ ناقصین معتقد تھے کہ امام علی نے عثمان کو قتل کیا ہے اور عثمان کے قاتلوں کی حمایت کرتے ہیں۔ ناقصین خود کو عثمان کے خون کا بدلہ لینے والے معرفی کرتے تھے۔ اس کے رد عمل کے طور پر امام علی علیہ السلام نے خود انہیں عثمان کا اصل قاتل قرار دیتے ہوئے فرمایا: یہ خون کا بدلہ لینے کا دعویٰ اس لیے ہے تاکہ کوئی ان سے عثمان کے خون کا بدلہ لینے کا دعویٰ نہ کرے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی جانب سے ناقصین کی جو سرزنش کی گئی ہے، اس میں اکثر طلحہ و زبیر آپ کا مخاطب تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اس جنگ کا مسبب اصلی طلحہ و زبیر کو قرار دیتے تھے، اور اس جنگ میں عائشہ ایک ضمنی قرار ادا کر رہی تھی۔ دوسرے لفظوں میں طلحہ اور زبیر کی طرف سے ان کو غلط پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ اصحاب جمل نے جنتے دلائل ذکر کئے ہیں، ان میں سے ایک کی بھی کوئی عقلی توجیہ نہیں ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ عثمان کے خون کا بدلہ صرف اور صرف ایک بہانے سے زیادہ نہیں تھا، کیونکہ جب تک عثمان زندہ تھے خود عائشہ کے ان سے اچھے تعلقات نہیں تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عائشہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا عثمان کے ہاں لے جا کر بطور احتجاج کہتی تھیں: ابھی تک رسول خدا کے کفن بھی خشک نہیں ہوا ہے، جبکہ تم ان کے لائے ہوئے احکام میں اس طرح سے تغییر ایجاد کر رہے ہو اور ان میں تحریف کر رہے ہو۔ امام علی علیہ السلام نے ذی الحجہ سنہ 35 ہجری کو مدینہ کے مہاجرین اور انصار کے اصرار پر اپنی باطنی رغبت کے نہ ہوتے ہوئے زمام خلافت کی باغ ڈور سنبھالی۔ طلحہ اور زبیر جو ابتداء میں خلافت پر نظریں جمائے ہوئے تھے، جب کامیاب نہ ہوئے اور خلافت امام علی تک پہنچی تو اس امید میں تھے کہ آپ خلافت کے امور میں انہیں بھی شریک کریں گے اور کم از کم کسی صوبے کی گورنری انہیں بھی ملے گی۔
अपनी इसी खाम ख्याली को अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने हजरत अली अलैहिस्सलाम से बसरा और कोफा या इराक और यमन उनके स्पर्द करने को कहा, लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम उन्हें उस काम के लिए शाइस्ता नहीं समझते थे। इमाम अली की खिलाफत के 4 माह गुजरने के बाद जब तलहा और ज़ुबैर उस नतीजे पर पहुंचे कि इमाम अली की खिलाफत और तरज हुक्मरानी की वजह से लोग इन दोनों से दूर हो गए हैं और अब मदीना में उनके लिए कोई मकाम नहीं है, तो उन्होंने इमाम से उम्र के लिए मक्का जाने की इजाज़त मांग ली। तलहा और ज़ुबैर ने अपने अहदाफ की पाया तकमील की खातिर आयशा, जो उस्मान की कत्ल से पहले उम्रा की गरज से मक्का गई थी, से उस्मान के कातिलों से जो इस वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम के करीबी दोस्तों और आपके लश्कर के सिपा सालारों में से हैं, से उस्मान के खून का बदला लेने के लिए उनका साथ देने की दरख्वास्त की। कुछ मुद्दत के बाद आखिरकार आयशा ने उनकी दरख्वास्त को कबूल कर ली। अमीर अल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की खुतबा नंबर 172 में इस बात की तरफ यूं इशारा फरमाते हैं, ये तलहा व ज़ुबैर मेरी बियात से खारिज हो गए और हर में रसूल खुदा को अपने साथ उधर से इधर ले जाते थे, जिसे कनीज को खरीदते वक्त उसे अपनी मर्जी से उधर उधर ले जाते। ज़ुबैर पैगंबर और इमाम अली के खालाजाद और आयशा की बहन के शोहर थे। ज़ुबैर का बेटा अब्दुल्ला ने आयशा को तलहा और ज़ुबैर के साथ रखने और जंग को और शाला वर करने में अमदा किरदार अदा किया। 15 आयशा भी हजरत अली अलैहिस्सलाम से कीना रखती थी और ये चीज खुद आयशा का तलहा और ज़ुबैर के साथ मुल्हक होने में मुअस्सिर साबित हुई। यूं तलहा, ज़ुबैर और दूसरे जदाई तलबान जो जानते थे कि आयशा हमसर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर के जो लोगों की तौजा का मरकज थी, उनका काम किसी नतीजे तक पहुंचने वाला नहीं है, आयशा की इजाजत से एक लश्कर तैयार करने में कामयाब हो गए। अब्दुल्ला बिन आमिर बिन कुरैज और याली बिन उमिया भी अपनी बेपनाह दौलत और बहुत सारे ऊँटों, बाज रवायात के मुताबिक 600 ऊँट और 6 लाख दिरहम या दिनार के साथ यमन में उनके साथ मुल्हक हो गए और सब आयशा के घर में जमा हो गए। अब्दुल्ला बिन आमिर ने बसरा की तरफ हरकत करने जबकि आयशा ने मदीना जाने की तजवीज़ पेश की, लेकिन इसहाब जमल अब्दुल्ला बिन आमिर की तजवीज़ से तवाफुक और आयशा की तजवीज़ की मुखालफत करते हुए बसरा की जानिब रवाना हो गए, क्योंकि वो मदीना वालों से मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते थे। उसके अलावा बसरा के लोग तलहा व ज़ुबैर के हामी थे और खुद अब्दुल्ला बिन आमिर के भी वहाँ कुछ यार व मददगार रहते थे। यूं 3000 सिपाहियों पर मुश्तमिल लश्कर रवाना होने के लिए आमादा हुए, जिनमें से 900 के करीब मक्का व मदीना वाले थे। रास्ते में जहां कहीं भी रखते आयशा इस सरजमीन का नाम पूछती थी, यहां तक कि हवाब नामी जगह पर पहुंचे। जब आयशा को इस मंतिके के नाम का पता चला तो लश्कर से जिद्दन होकर वापस मक्का जाना चाहा, क्योंकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा था कि जब भी हवाब के कुत्ते तुम पर भौंके तो समझ लेना तुम बातिल पर हो। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर 50 आदमियों को जमा किया और उन्होंने कसम खाया कि ये जगह हवाब नहीं है, और उस तरह उसने आयशा को वापस जाने से रोक दिया। ये बात अहल संत की बहुत सारे मनाबे में मौजूद है। आयशा के कहने पर अब्दुल्ला बिन आमिर बसरा के सरदारों के नाम आयशा का खत लेकर मख्फी तौर पर शहर में दाखिल हो गया, जबकि आयशा अपने हमराहान के सान हुफैर या हफर अबी मूसी तक पेश कदमी की। जब बसरा वालों को उनकी आमद का पता चला तो उस्मान बिन हुनैफ बसरा में हजरत अली अलैहिस्सलाम का गवर्नर ने इमरान बिन हुसैन और अबू अल-अस्वद दुअली को आयशा के यहाँ भेजा और उससे यहाँ आने और इमाम अली से उनकी इख्तिलाफ का सबब पूछा। आयशा ने कहा, उबाशों ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम पर हमला किया और मुसलमानों के पेशवा उस्मान को जुल्म और सितम के साथ कत्ल किया और उसके अमवाल को गारत किया और खुदा के हुर्मत वाले महीनों की हुर्मत पाल किया गया। मैं आई हूँ ताकि मुसलमानों को उनके करतूत से आगाह करूँ और इन हालात की इस्लाह के लिए जो कुछ अंजाम देना चाहिए उन्हें बता दूँ। उन्होंने आयशा से दूसरी ज़ौजात नबी की तरह खुदा के हुक्म की तामील करते हुए घर में बैठने की तलकीन की। दूसरी तरफ से तलहा और ज़ुबैर ने भी उस्मान के खून के इंतकाम की खातिर आने का कहा और यह कि उन्होंने मजबूरा बैयत की थी, लिहाजा बात शकनी की बात माकूल नहीं है। रबीउत्तानी या माह जमादी अल-अव्वल सना 36 हिजरी की 24 और 25 तारीख थी।
जब इमाम अली अलैहिस्सलाम को आयशा और तलहा व ज़ुबैर की बसरा की तरफ हरकत की खबर दी गई तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मदीना में जंग के लिए तैयार होने की दावत दी और लोगों ने भी इस दावत पर लबैक कहा। उसके बाद इमाम ने सहल बिन हनीफ अंसारी को मदीने में अपना जानशीन मुकर्रर फरमाया और खुद 700 अफराद पर मुश्तमिल सिपाहियों के साथ मदीना से बाहर तशरीफ ले गए ताकि मुखालिफिन को दोबारा वापस ला सकें। लेकिन जब मदीना से 3 मील के फासले पर रब्जा के मकाम पर पहुंचे तो पता चला कि मुखालिफिन काफी दूर हो गए हैं। इमाम ने चंद रोज वहां तवक्कुफ फरमाया और यहाँ कबीलाती के मोमिनीन आपके साथ मुल्हक हुए और मदीने से आपके लिए मरकब और असलहा वगैरह लाया गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम के सिपाही मुख्तलिफ कबाइल के साथ गुरवा पर मुश्तमिल थे। बाज कबाइल जैसे बनी कैस, बनी अजद, बनी हंजला, बनी इमरान, बनी तमीम, बनी जब्बा और बनी रिबाबस असहाब जमल के साथ मुल्हक हो गए थे। जबकि बाज ने दोनों गुरवा का साथ न दिया। मानंद अहनफ बिन कैस, उसने इमाम से कहा, अगर आप कहते हैं तो आपके साथ मुल्हक होता हूँ, वरना अपने कबीला बनी साद को लेकर कुनारा कशी करता हूँ और 10,000 या 4,000 तलवार को आपसे दूर करता हूँ। इमाम अलैहिस्सलाम ने उसे दौर रखने को तरजीह दी और उसे मुल्हक होने को नहीं कहा। एक और रवायत के मुताबिक इमाम अलैहिस्सलाम के सिपाहियों की तादाद 19 या 20,000 जबकि मुखालिफिन की तादाद 30,000 या उससे ज्यादा थी। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम तफ के रास्ते बसरा की तरफ रवाना हुए और जाविया नामी जगह पर चंद रोज क़ियाम के बाद अपना सफर जारी रखते हुए बसरा में दाखिल हुए तो दूसरी तरफ से तलहा, ज़ुबैर और आयशा भी फरजा बंदर के रास्ते बसरा पहुंचे। यूं दोनों गरवा बसरा में एक दूसरे के रूबरू हुए। आयशा भी अपनी इकामत गाह कुबैला अजद के मोहल्ले में वाक़े मस्जिद हुद्दान मुंतकिल हुई जो मैदान जंग के नजदीक थी। इमाम अली अलैहिस्सलाम जंग का कोई इरादा नहीं रखते थे, इसीलिए बसरा में दाखिल होने के 3 दिन तक उस कोशिश में रहे कि किसी तरह मुखालिफिन को जंग से बाज रखें और उन्हें अपने साथ मुल्हक होने की दावत देते रहे। जंग के दिन भी इमाम अली अलैहिस्सलाम सुबह से ज़हर तक असहाब जमल को वापस आने की दावत देते रहे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने तलहा व ज़ुबैर के नाम एक खत लिखा जिसमें अपनी खिलाफत की मशरूयत, लोगों की आज़ादाना बियात, उस्मान के कत्ल में अपनी बेगुनाही, उस्मान के इंतकाम लेने में तलहा और ज़ुबैर के हक बेजानिब न होने और तलहा और ज़ुबैर का कुरान की सरासिर मुखालफत करते हुए ज़ौजा पैगंबर इकरम को अपने घर और मंजिल से बाहर लाने जैसे मसाइल की तरफ उन्हें आगाह किया। इमाम अलैहिस्सलाम ने आयशा को भी एक खत के जरिए आगाह किया कि वो कुरान की हुक्म उदूली करते हुए अपने घर से बाहर निकली हैं और लोगों की इस्लाह और उस्मान के इंतकाम के बहाने लश्कर कशी करके खुद को एक अजीम गुनाह में मुब्तला किया है। तलहा और ज़ुबैर ने जवाब में अपनी नाफरमानी पर इसरार किया जबकि आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर लोगों को इमाम के खिलाफ इकसाने में मसरूफ थे जिनका इमाम हुसन ने जवाब दिया। आखिर में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सासाह बिन सोहान फिर अब्दुल्ला बिन अब्बास को तलहा व ज़ुबैर और आयशा के साथ मुज़ाकिरात के लिए भेजा, लेकिन उन मुज़ाकिरात का कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकला। इस दरमियान आयशा सबसे ज्यादा सरसख्त निकले। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने तलहा और ज़ुबैर से मुलाकात और गुफ्तगू की और ज़ुबैर जिसे आप ज्यादा नसीहत पजीर मानते थे पैगंबर इकरम की एक हदीस याद दिला दी जिस पर ज़ुबैर ने इकरार किया कि अगर ये हदीस उन्हें याद रहती तो हरगिज़ जंग के लिए नहीं आते और इमाम अलैहिस्सलाम के साथ जंग न करने की कसम खाई। इस वक्त ज़ुबैर ने आयशा से कहा कि वो जंग से कुनारा कशी अख्तियार करना चाहते हैं। इस मौके पर उनके बेटे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने कहा कि ये तुम ही थे जिसने उन दो लश्करों को एक दूसरे के आमने सामने ला खड़ा कर दिया है और अब ये एक दूसरे के ऊपर तलवारें निकाल रहे हैं। अब तुम चाहते हो कि इनको छोड़कर चले जाओ। तुम अली इब्न अबी तालिब के दिलेर और शुजा जवानों के हाथों में मौजूद परचमों को देखकर खौफजदा हो गए। तबरी के नकल के मुताबिक ज़ुबैर ने अपने बेटे अब्दुल्ला की इसरार पर कसम तोड़ने के कुफारा के तौर पर एक गुलाम आज़ाद किया, फिर जंग के लिए आमादा हो गए।
5 जमादी अत्तानी सना 36 हिजरी या 10 जमादी अत्तानी 36 हिजरी या 10 जमादी अल-अव्वल 36 हिजरी को इनको बसरा के नवाह में खुरैबा के मकाम पर जंग का आगाज हुआ। इमाम अली अस्सलाम ने जंग के आगाज से पहले अपने एक सिपाही के हाथों में कुरान देकर उसे बुलंद करवाकर मुखालिफिन को एक बार फिर उस किताब के कवानीन पर अमल पैरा होने और तफरीका से बाहर रहते हुए इत्तिहाद और इत्तिफाक की दावत दी, लेकिन मुखालिफिन ने उसे शहीद कर दिया। इमाम अली अस्सलाम के कई दूसरे साथियों के ऊपर पर तीर चलाया। उसके बाद इमाम अली अस्सलाम ने फरमाया, अब जंग करना जायज है, अब जंग की बारी है। इमाम अली अस्सलाम ने अपने सिपाहियों को जंग की इब्तिदा करने से मना किया हुआ था और उन्हें ये हुक्म दिया था कि जख्मियों को न मारा जाए, किसी को मिसला न किया जाए, इजाजत के बगैर किसी के घर में दाखिल न हो, किसी को बराबला न कहा जाए, किसी औरत पर हमला आवर न हो और सिवाय जो चीज मुखालिफिन के मोर्चों में है किसी चीज को हाथ न लगाया जाए। लश्कर इमाम अली अलैहिस्सलाम के दाएं बाजों की कमांड मालिक इश्तर और बाएं तरफ की कमांड उमार बिन यासिर, जबकि फौज का परचम मोहम्मद बिन हनफिया के हाथ में था। इस जंग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लश्कर के दाएं तरफ और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बाएं तरफ से जंग फरमा रहे थे। असहाब जुमल ने भी अपनी सिपाहियों को मुरतब किया। दरहाली की आयशा एक ऊंट पर सवार थी जिसे ज़रा से छुपाया गया था और लश्कर के आगे आगे चल रही थी। असहाब जुमल उस चंद घंटों की जंग में काफी सारे सिपाहियों की हलाकत के बाद रात तक मगलूब हो गए। जब असहाब जमल का लश्कर फिरार होने लगे तो मरवान बिन हकम ने तलहा के टांगों में एक तीर पिवस्त किया जिससे वो जख्मी हो गया। तलहा को बसरा में एक घर में मुंतकिल किया गया और वो वहीं पर शदीद खूनरेजी की वजह से हलाक हो गया। कहा जाता है कि इस मौके पर मरवान बिन हुक्म ने उस्मान के बेटे अबान से कहा कि तुम्हारे बाप के एक कातिल को मैंने हलाक कर दिया है। बादो तारीखी मनाबे के मुताबिक ज़ुबैर, जो अपने कहे पर शर्मंदा थे, जंग से पहले ही असहाब जमल से जदा होकर मैदान जंग से बाहर चले गए थे। एक और कौल की बना पर जंग में शिकस्त खाने के बाद ज़ुबैर मैदान जंग से फिरार हो गए और मदीना चले गए। बहरहाल जब ज़ुबैर ने मैदान जंग तर्क किया तो अमरू बिन जुर्मूज ने अपने चंद साथियों के साथ इसका पीछा किया और वादी अल-सिबा नामी जगह पर उसे गाफिलगीर किया और उसे हलाक कर डाला। इमाम अली अस्सलाम ने ज़ुबैर की हिलाकत पर अफसोस और दुख का इजहार किया और जब उसकी तलवार पर नजर पड़ी तो फरमाया कि सदर इस्लाम में उस तलवार ने कई बार पैगंबर इकरम के चेहरे से गम अंदुआ को दूर किया था। जंग के बाद आयशा को कजावा से बाहर लाया गया और उनके लिए एक अलग खेमा नस्ब किया गया। इमाम अली अस्सलाम ने जंग को शौलावर करने की बना पर उनकी सरजनिश की। उनके बाद उनके भाई मोहम्मद बिन अबी बकर के जरिए उन्हें बसरा रवाना किया। आयशा का वहां चंद रोज क़ियाम के बाद मदीना जाना करार पाया था, लेकिन मोहल्लत तमाम होने के बाद भी उन्होंने मदीना जाने से ताल्लुल किया तो इमाम ने अब्दुल्ला बिन अब्बास को उनके पास भेजा और उन्हें मामले से आगाह किया। उसके बाद उन्हें बसरा की कई औरतों के साथ, जिन्हें इमाम अली अस्सलाम के हुक्म पर मर्दों के लिबास में मलबूस किया गया था, अपने सिपाहियों की एक तादाद के साथ मोहम्मद बिन अबी बकर या अब्दुर्रहमान के हमराह बा एहतराम मदीना रवाना किया गया। इस वाक़ये के बाद आयशा को जब भी जंग जमल की याद आती वो ये आरजू करती थी कि ऐ काश इससे पहले वो मर चुकी होते और इस हादिसे में वो शरीक न होते। आयशा जब भी आयत वो करना फी ब्यूतिकुन्ना चादर की तलावत करती, इस कदर गिरिया करती कि उनका चेहरा आंसू में भीग जाता था।